Okay, so in last lecture we discussed about the importance of B-roll shot, how to place those B-roll shots on the topmost layer, uh, uh, and how to place those B-roll shots, and we also discussed about the audio background, why audio background is very important, how it helps to uplift your film, uplift your story. So we talked about these two aspects in the last lecture, and also of course about the basic editing, cutting of the videos. So in this lecture today, we are going to talk about the text and graphics thing, which is also a very important element of filmmaking, which also helps to carry forward your film. So see, in this example, what we did is we started with the visual of the lady walking down the street and with the background music. Let me play it for you. माझं नाव शीतल कोरे आणि गेली 8 वर्ष दैनिक पुढारीमध्ये एक आर्टिस्ट म्हणून काम केलेलं आहे मी. Okay, so this is how we started in last lecture, but now from the filmmakers here, I want कि मुझे ये ऐसा suddenly visual से start नहीं करना है. This is also okay, no problem with it, but the story that we have shot here, the story that we are editing here requires some facts. Okay, now one line ये story का क्या है कि she was working in some of the newspaper, and then in lockdown she thought कि why not to start my own business. Okay, where all people were thinking about कि lockdown में इकोनॉमिकली बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया, एंड बहुत सारे शॉप्स बंद हो गए. नाउ she was taking looking at this as an opportunity, and then she started her own business. So this is how this story goes ahead. Now अभी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि लॉकडाउन में एक जगह दुकानें बंद हो रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, लेकिन एक जगह दूसरे साइड में क्या है, शी इज़ बिल्डिंग हर ओन बिजनेस. ओके, वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. नाउ आई वांट टू स्टार्ट दिस फिल्म विद सम ऑफ द फैक्ट्स, है ना, कि लॉकडाउन में क्या क्या हुआ, कितना इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया. तो ये सारी चीज़ें मैं स्टार्ट में दिखाना चाहता हूँ ऑडियंस को, और फिर बाद में मुझे ये फिल्म देखनी चाहिए, आगे लेके जानी चाहिए. ऐसा एक मेरा थॉट था. तो वी डिसाइडेड टू डू दिस. सो साक्षी कदम, योर सीनियर, शी रोट डाउन ऑल द फैक्ट्स. ज़्यादा नहीं है कोई फैक्ट्स, लेकिन दो तीन लाइन्स का हमने सोचा कि उतना ही फैक्ट्स रखेंगे. और द फैक्ट्स वॉज गोइंग विद द स्टोरी. So what were those facts? Let us see. Now the video that I'm going to play, we used this effect. आपको एक टाइपराइटर का ऑडियो भी सुनाई देगा, और एक मतलब हाउ द टाइपराइटर टाइप्स. तो वो ऑडियो जब आता है टाइपराइटर टाइप करते वक्त, वो एक बैकग्राउंड ऑडियो है, और the effect that text reveals is also a typewriter effect. So let us see. Okay, so this was the start in the main film that you will very soon see that film. So we started from this text graphics and then the whole story. So this is also a very interesting thing. ये अच्छा लगता है ऑडियंस को कि कुछ हम लोग पहले फैक्ट थ्रो करें, एंड देन आवर स्टोरी इज़ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी टू इट, कि ऐसे सारे इकोनॉमिक क्राइसिस में भी शी हैज स्टार्टेड अ बिजनेस. So let us see how we can add some text and graphics, and how a film can stand out with those text and graphics as well. Okay, so to add text in your film, so let us see how to add it. First of all, what I'll do is I'll select this, and then I'll drag it so that I have some space to add the text. You can also overlay on it, but it's up to you. But from in this condition, I want to start it from the um, blank side. I don't want to overlay on any video.
So after that, go into the file, new, and then legacy title. Okay, write the name of your title, for example, facts. Okay, so as soon as you write the name and press the OK button, you will find out this one more pop-up window. So now this is all text graphic panel. तो यहाँ पे आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो. You can change the font, you can change the size, you can design, you can add some shapes, and everything that is related to text and graphics, you can do it over here. Okay, so now let us start typing those facts. Now मैंने वो कॉपी कर दिया है. I'll just control V और ये यहाँ पे पेस्ट हो गया. Now this is your selection tool. Make sure कि वो now I have to adjust the font. ये थोड़ा स्क्रीन के बाहर जा रहा है. Now this area that you are seeing, okay, ये जो आप देख रहे हो, this is the title safe area. इसके बाहर आपको टाइटल, आपका टेक्स्ट जो है वो नहीं लेके जाना है. So let us quickly arrange this text. For example, पहले तो मैं उसका font change करूँगा. So you have this, यहाँ पे ये पूरा आपको इसके सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे. तो 100% पे फॉन्ट है. So let's go for 15%. You can change the font over here. So let us keep it very simple. Yes. Okay, so this is a readable text, and then I will press some enter. थोड़ा सा उसको मैनेज करेंगे. Now I want this in a center alignment, तो मैं इसको central align कर दूंगा. So Chrisley announced this perhaps. Okay, let us do it from here, India's. Okay, थोड़ा सा वो इसका जो लाइनिंग है वो हम बढ़ाएंगे. तो फ्रॉम हियर उसका जो डिस्टेंस है हम लोग बढ़ा देंगे. ओके, सो नाउ दिस लुक्स फाइन. इसको हम लोग सेंटर अलाइन कर देंगे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, सो दैट the text remains in center on the screen. So this is the text that we want to add it in the first frame of our film. तो ये अगर इसको कलर चेंज करना है, then you can change the color from here. Okay, if you want to give some, अगर इसको कुछ शेडो देना है, शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से. सो ये ऐसे दिखेगा. ओके, बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है आपको तो आप बैकग्राउंड दे सकते हो. सो ऑन. सो अनचेक कर दोगे तो फिर वो निकल जाएगा. सो यू कैन चेंज द कलर फ्रॉम हियर अगेन. सो फॉर दिस आई एम वांट टू कीप इट इन द सिंपल वाइट कलर. ओके, सो ये टेक्स्ट मेरा हो गया. कुछ अगर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ से ड्रॉ भी कर सकता हूँ, कुछ शेप एंड साइज शेप, और उसके पीछे भी मैं ये टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ. राइट क्लिक अगर मैं करूँ, ओके, अरेंज एंड सेंड बैकवर्ड. सो नाउ व्हाट विल हैपन, द टेक्स्ट लेयर विल बी ऑन इट. इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि वो विजिबल हो जाए. ओके, सो द टेक्स्ट लेयर इज ऑन द शेप. ओके, सो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो. सी माई सजेशन फॉर यू वुड बी, जो भी हम लोग टूल सीख रहे हैं या जो भी हम लोग एक मॉड्यूल सीख रहे हैं, मेक श्योर कि यू गो इनसाइड आउट ऑफ इट. अब ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना एक शॉर्ट वीडियो में बहुत इम्पॉसिबल होता है, या फिर इफ़ वी वर देयर इन द क्लासरूम तो ईजी होता. नाउ दैट वी हैव सम लिमिटेशंस, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो इन ईच एंड एवरी ऑप्शन ओवर हियर एंड ट्राई इट yourself. अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है then you can call me again anytime. Okay, so now I'm doing Control Z. Okay, so this is my text. I have done everything. जो भी मुझे करना था वो मैंने कर दिया है. टेक्स्ट अलाइन कर दिया, सब कुछ हो गया है. Once I'm done with aligning and doing writing the text, मैं इसको क्लोज कर दूंगा. सो क्लोज करना इसका मतलब ये नहीं कि ये टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा. क्लोज करना मतलब सिर्फ ये पैनल क्लोज हो रहा है, बाकी योर टेक्स्ट विल बी देयर. नाउ इफ यू कैन सी, यू हैव दिस टेक्स्ट ओवर हियर विद द नेम. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज ड्रैग एंड ड्रॉप इट ऑन योर टाइमलाइन. ठीक है, ओके, सिंपल. एक और टेक्स्ट है, वो भी हम लोग ऐड कर देते हैं. द सेकेंड टेक्स्ट, अगेन फाइल, legacy title,
facts to text tool, and then control V, copy paste. Again 50% font size, and my font will be Arial जैसे पहले था. Let's start entering. इसको हम लोग अलाइन करते हैं. Okay, so this is the second text. Close, and then I will put it over here. Okay. तो अभी अगर मैं प्ले करूँ तो so this is a start, and then the second text. Okay, मुझे उसको render करना है. See, this is a process. Rendering is a process. What happens when you are editing multiple effects? अगर आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे हो आपके इसमें अलग अलग, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट हो गया, या फिर कुछ एनिमेशन हो गया, या फिर ट्रांजिशन हो गया, या फिर वीडियो इफेक्ट्स, जितने चीज़ें आप अलग अलग करोगे आपके प्रीमियर में, आपके फिल्म के साथ, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेसर, डिपेंडिंग अपॉन द रैम ऑफ योर सिस्टम, you have to render it, pre-render it. Pre-render मतलब क्या है? It creates a temporary file again, and then it's very easy to play back in the नॉर्मल स्पीड. अदरवाइज क्या होगा, बहुत बार ऐसे होता है कि वो अटक अटक के चलेगा, क्योंकि प्रोसेसर और रैम जो यूज़ हो रहा है वो इनफ नहीं हो रहा है. तो ये सारे सिचुएशन में, कंडीशन में, यू हैव टू रेंडर इट टू, अगर आपको वो नॉर्मल स्पीड पे या स्मूथली अगर प्ले होना है. नाउ इफ़ यू सी, यहाँ पे ग्रीन लाइन आ गया है. ओके, बिकॉज आई हैव रेंडर्ड इट. रेंडर करने के लिए शॉर्ट किया है एंटर ऑन योर कीबोर्ड. जैसे आप एंटर करोगे वैसे ये रेंडर हो जाएगा. तो अभी ये अटक अटक के नहीं चलेगा. तो इतना पार्ट जो है इट इज़ प्री रेंडर्ड. ओके, ओके, सो वी आर डन विद द टेक्स्ट. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, अगेन ये बहुत ही प्लेन लग रहा है, देयर इज नथिंग हैपनिंग. तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ड्रैग माय ऑडियो हियर, एंड नाउ आई विल प्ले इट. माझं नाव शीतल ओके, नाउ इन दिस कंडीशन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं. सी, पहले हमने क्या किया था, वी स्टार्टेड विद अ बी रोल शॉट एंड वी स्टार्टेड विद द म्यूजिक. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, हमने यहाँ पे क्योंकि टेक्स्ट डाल दिया है, तो अगेन ब्लैंक बी रोल से स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट आई विल डू इज, मैं ये जो बी रोल शॉट्स है वो यहाँ पे अलाइन कर रहा हूँ, एंड देन पूरा ये सीक्वेंस में टेक्स्ट के साथ अलाइन कर रहा हूँ. ठीक है. माझं नाव शीतल कोरे आणि गेली 8 वर्ष दैनिक पुढारीमध्ये एक आर्टिस्ट म्हणून काम केलं. So it is up to you how you want to start your film, how you want to express it. तो आप It's 7 o'clock. बी रोल से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप डायरेक्टली विजुअल से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप टेक्स्ट से भी स्टार्ट करते हो. इट इज ऑल टोटली डिपेंडेंट ऑफ हाउ यू वांट इट. ओके, माझं नाव शीतल कोरे आणि गेली 8 वर्ष दैनिक पुढारीमध्ये एक आर्टिस्ट म्हणून काम केलेलं आहे मी. मध्यंतरी लॉकडाऊनच्या काळात बऱ्याच ओके, अभी अभी ये तो टेक्स्ट हमने डाल दिया फुल स्क्रीन में, कुछ फैक्ट्स हमने ऐड कर दिए. नाउ फॉर एग्जांपल आई वांट टू राइट हर नेम, इवन दो शी इज सेइंग कि माय नेम इज शीतल कोरे, बट आई वांट टू राइट हर नेम इन द टेक्स्ट फॉर्मेट एज वेल. अगेन विल गो इनटू द फाइल न्यू एंड legacy title. Okay, and then lower third Sheetal Kore. Okay, now पहले जब मैंने legacy title मैंने ऑप्ट किया तब ब्लैक फ्रेम दिख रहा था, लेकिन अभी I can see that lady. See, wherever your playhead is there, okay,
वही आपको फ्रेम यहाँ पे दिखेगी. फॉर एग्जाम्पल नाउ माई प्ले हेड इज हियर. नाउ द frame that I am seeing in this particular window is the same as the playhead, जो जहाँ पे playhead stop हुआ है. तो ये बहुत easy होता है. important easy इसलिए हो जाता है कि now I can align the text very properly, क्योंकि now I can see the frame और यहीं पे मैं text align कर सकता हूँ. Now I know where my character is standing and I don't want to overlay my text on it, so यहाँ से मैं कर सकता हूँ. Now क्योंकि मुझे यहाँ पे नाम देना है तो मैं प्ले हेड यहाँ पे रख रहा हूँ एंड देन आई कैन स्टार्ट एडिंग द टाइटल, डिजाइनिंग द टाइटल हियर. सो व्हाट आई विल डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम शीतल कोरे. ओके, इसका भी फॉन्ट हम चेंज करते हैं, सिंपल एरियल. ओके, एंड 50% अगेन, थोड़ा इसको बोल्ड करते हैं. ठीक है, एक और टेक्स्ट मुझे डालना है. सी व्हाट हैपेंस, जब भी आप किसी का नाम दे रहे हो तो उसके नीचे उसका डेजिग्नेशन भी होता है, इंपॉर्टेंट होता है. तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे हम डेजिग्नेशन डाल रहे हैं. ओके, एंटरप्रेन्योर हमने उनका डेजिग्नेशन दे दिया है. यहाँ पे थोड़ा इसको और हम छोटा कर सकते हैं. ओके, अगर आपको छोटा, आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको यहाँ से नहीं करना है, बट मेक श्योर कि यू होल्ड शिफ्ट वाइल यू नो ड्रैगिंग इट टू द लोअर साइज और द इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द साइज. अगर आप शिफ्ट पकड़ोगे तो उसका जो प्रोपोर्शन है वो चेंज नहीं होगा एंड इट विल मेंटेन द रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉन्ट. ओके, ये तो टेक्स्ट हो गया, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ठीक से वो पॉपअप नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बैकग्राउंड है उसके साथ वो मर्ज हो रहा है. तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डिज़ाइन समथिंग. ओके, नाउ हियर दैट शेप टूल जो अभी हमने देखा, तो यहाँ पे ये शेप टूल बहुत हैंडी होता है. फॉर एग्जांपल ये मैंने रेक्टेंगल का शेप टूल लिया है एंड देन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, सो right click, I will send arrange and send backward. I will change the font color, इसको हम लोग ब्लैक करते हैं. ठीक है, नाउ इसको थोड़ा सा और अरेंज करना है हमें. ठीक है, ओके. अभी ये शेप लेयर अगर मुझे कॉपी करना है, आई वांट दिस शेप लेयर अगेन, तो मुझे वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करोगे तो वो इजीली कॉपी हो जाएगा. ओके, सेम विथ दिस फॉन्ट, इसका कलर चेंज करते हैं ब्लैक, और इसको भी हम लोग राइट क्लिक करके अरेंज और सेंड बैकवर्ड. ओके, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ. यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप डिज़ाइन कर सकते हैं इसको आराम से. तो नाउ उसको एक हमने सॉलिड लेयर का बैकग्राउंड दिया है. नाउ दैट नेम वो अच्छे से पॉपअप हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स विद दिस पर्टिकुलर थिंग. इसका आप ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, है ना. तो इसको आप लोग शेडो दे सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप यही टेक्स्ट पैनल में कर सकते हो. नाउ डेट आई हैव डन, मैंने टेक्स्ट मेरा फाइनल हो चुका है, अलाइनमेंट फाइनल हो चुका है. देन मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे आके प्लेस कर रहा हूँ. सी अगेन दिस रेड लाइन, यू कैन सी आई विल प्रेस सेंटर ऑन माई कीबोर्ड और वो क्विकली रेंडर हो जाएगा. नाउ इफ आई प्ले इट फ्रॉम हियर, त्याचा परिणाम झाला. त्याच्यानंतर मी विचार केला की काय करायचं, आणि माझ्या लहान भावानं, राजेश नाव आहे त्याचा. Okay, so this is how you can add the text with the legacy title panel. और एंड क्रेडिट्स भी ऐसे ही होते हैं. आगे जाके भी अगर आपको कुछ बीच में कुछ फैक्ट्स देना है या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है जो आपके टैलेंट ने या फिर जिसका आपने इंटरव्यू लिया है उन्होंने नहीं बोला है, अगर कुछ फैक्ट्स आपको डालने हैं तो आप ये टेक्स्ट के हिसाब से आप डाल सकते हो. एंड के क्रेडिट्स भी डाल सकते हो. सो इन दैट वे.
तो आई होप आपको ये टेक्स्ट वाला चीज़ समझ में आ गई है, एंड प्लीज़ डू प्रैक्टिस, एंड इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम आई एम ऑलवेज देयर टू एक्सप्लेन यू। अच्छा, ये मैंने बहुत ही ज़्यादा प्लेन टेक्स्ट आपको दिखाया, इसके अंदर कोई इफ़ेक्ट्स नहीं मैंने ऐड किए, क्योंकि इफ़ेक्ट्स का लेक्चर अलग होगा। उसके जो ट्रांजिशंस है, वीडियो इफ़ेक्ट्स है, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग टेक्स्ट पे एंड ऑन दी वीडियो लेयर्स, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इस लेक्चर में सिर्फ टाइटल कैसे ऐड करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसके कलर कैसे चेंज करना है, ये लेक्चर यहीं तक था।